واقعہ جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ میں معمول کے حساب سے اپنی لاجسٹک کمپنی سے اپنا ٹرک لے کر نکلتا ہوں۔ میرے ٹرک کے ساتھ 2 ٹریلر لگے ہوتے تھے۔ ویران راستوں سے جنگلوں سے ہو کر اپنی منزل پر پہنچتا تھا۔ میں اپنے سفر پر رواں دواں تھا۔ میں اب سٹی کو چھوڑ چکا تھا۔ سردی انتہا کی تھی۔ میں نے اپنے ٹرک میں ہیٹر آن کر رکھا تھا اور میں اس سفر میں اکیلا ہی تھا، کیونکہ وہاں ٹرک بہت زبردست ہیں اور فلی آٹومیٹکلی ہیں کہ ڈرائیور بھی نام کا ہوتا ہے ان میں۔ خیر، بیک ٹو دا ٹاپک۔ میں سفر پہ رواں دواں تھا۔ مجھے وہ پورا دن پوری رات سفر کرنا تھا۔ اچھا ہوتا ایسا تھا کہ راستے میں موٹلز پڑتے تھے، جیسے پاکستان انڈیا میں جو راستے میں ڈھابے بنے ہوتے ہیں اور وہاں پر موٹل کہلاتے ہیں۔ عموماً ان موٹلز پہ اسٹاپ لے لیا کرتے تھے تاکہ فریش ہو سکیں اور کچھ کھانا پینا کر سکیں اور پھر آگے نکلیں۔ میری عادت تھی کہ میں ان موٹلز پہ کم ہی رکتا تھا، کیونکہ ہم انڈین چٹپٹے کھانوں کے عادی ہوتے ہیں اور وہاں کے کھانے میری سمجھ میں نہیں آتے تھے۔ تو میں نے اپنے پاس ہی کچھ کھانے پینے کا سامان رکھا ہوا تھا۔ تو مجھے پسند تھا کہ میں کسی خوبصورت جگہ پر جہاں بہت پیاری سینری ہو، میں وہاں گاڑی روک کے اپنے ٹرک میں ہی اپنی فوڈ میکنگ کیا کرتا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد تھوڑا آرام اور پھر آگے کا سفر کیا کرتا تھا۔ ایسے میرا پیشن بھی پورا ہوتا تھا گھومنے پھرنے کا، اور میرا پروفیشن بھی۔ اب مجھے سفر کرتے ہوئے پورا دن گزر چکا تھا۔ میں اب جس ایریا میں انٹر ہوا تھا یہاں بہت برف باری ہو رہی تھی۔ ٹرک کی سپیڈ کافی سلو ہونے کی وجہ سے سفر کافی سلو ہو رہا تھا۔ بہرحال کمپنی والوں نے گاڑی میں ٹریکر لگا رکھے تھے، وہ ٹرک کو فالو کر رہے ہوتے تھے اور انہیں راستوں میں پڑتے ہوئے موسموں کا کافی اچھے سے اندازہ ہوتا تھا۔ تو کوئی پوچھ گاچھ نہیں تھی، ہم تھے تو ڈرائیور، مگر ٹرک ایسے ڈرائیو کرتے تھے جیسے اس کے مالک ہو۔ ہماری کمپنی بہت اچھی تھی۔ اب سنو فال ہونے لگی، رات بھی کافی ہو چکی تھی اور سنو فال کے باعث ہیڈ لائٹ کی بھی اتنی رینج نہیں تھی۔ میں ویسے بھی تھک چکا تھا۔ میں نے ایک جگہ دیکھی اور میں نے ٹرک وہاں پر پارک کر لیا اور کچھ کھانے کا سوچا، اور یہ بھی سوچا کہ تھوڑا آرام کر لوں گا۔ اب میں نے اپنے ٹرک کی ونڈ پر اور سائڈ والوں شیشوں پر لائک کرٹنس ٹائپ کی، آپ انہیں کرٹنس کہہ سکتے ہیں، ان شیٹ سے میں نے بند کر دیا، اور اب یہ کیبن بالکل پیک ہو گیا تھا اور اندر سے باہر اور باہر سے اندر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے پانی گرم کیا۔ زیادہ تھکاوٹ کے باعث میں نے میگی کھانے کا ارادہ کیا۔ میں نے ٹرک بند کر دیا تھا اور میگی بنا کر کھانے لگا۔ اچھا، یہاں ایک بات بتاتا چلوں، جس جگہ میں موجود تھا یہاں بہت گھنا جنگل تھا، لیکن برف باری کی وجہ سے سب ڈھکا ہوا تھا کہ عام انسان یہاں رات کی پرساریت سے ہی ڈر جائے، اگر ہم اس چیز کے عادی تھے۔ یہاں میں اپنی تعریف نہیں کر رہا، بلکہ یہ سچ میں ہے۔ انفیکٹ میں نے لائف میں 48 آورز ایک جنگل میں اکیلے کاٹے ہیں۔ تب میرا ٹرک خراب ہو گیا تھا اور 48 آورز بعد مجھے ریسکیو کیا گیا تھا۔ وہ بھی بہت خوفناک جگہ تھی، مگر میں نے وہ ٹائم وہاں اکیلے کاٹا تھا۔ خیر، وہ بھی ایک الگ قصہ ہے، کبھی آپ سے شیئر کروں گا۔ نہ صرف ہم میل ٹرک چلایا کرتے تھے، بلکہ لڑکیاں بھی ان ٹرکس کو ان راستوں پہ اکیلے ڈرائیو کرتی ہیں۔ خیر جی، میں میگی کھا کے اپنے ٹرک کے ڈرائیونگ سیٹ کے بیک سائڈ پہ جا کر لیٹ جاتا ہوں اور اپنا موبائل یوز کرنے لگتا ہوں کہ تھوڑا آرام بھی کر لوں گا۔ خیر، اب باہر کا ماحول ایسا تھا کہ کوئی ہلکی سی بھی چوں کی آواز بھی نکلے تو بھی سنائی دے۔ باہر بہت خاموشی تھی۔ میں سو نہیں سکتا تھا کیونکہ سنو فال کے باعث ٹرک پھنسنے کا خطرہ تھا۔ میرے پاس صرف 1 گھنٹہ تھا آرام کرنے کے لیے۔ 1 گھنٹے بعد مجھے اس ٹرک کو وہاں سے موو کرنا تھا۔ خیر، میں بھی لیٹا ہوا تھا اور میں نے کیبن کی لائٹ آف کر دی۔ مجھے ایسا لگا باہر سے کوئی دور سے برف پر چلتا ہوا آ رہا ہے۔ پہلے تو میرے دماغ نے یہ بات ایکسیپٹ نہیں کی، پھر میں نے ذرا غور کیا تو ہاں، باہر واقعی کسی کے چلنے کی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی برف پر چلتا ہوا آ رہا ہے۔ مگر اس میں ٹینشن والی بات یہ تھی کہ یہ جنگل میں یہاں کون ہو سکتا ہے؟ جتنا میں جانتا ہوں یہاں دور دور تک کوئی آبادی نہیں ہے، پھر کون ہو سکتا ہے؟ اور دوسری بات یہ تھی کہ وہ قدم چلتے ہوئے میرے کیبن کے پاس آ رہے ہیں۔ میں یہ بالکل فیل نہیں کروانا چاہتا تھا کہ جو بھی باہر ہے اسے یہ پتا چلے کہ اندر کیبن میں کوئی ہے۔ میں نے بس ایسے جیسے سانس روک لیا، میں اندر بے جان پڑا رہا۔ وہ قدم میرے کیبن کے بہت قریب آ چکے تھے اور پھر کچھ ایسا ہوا کہ میری جیسے روح نکل جائے گی، کیونکہ میرا پورا دھیان ان قدموں کی آواز پہ تھا۔ تو میں نے سنا کہ وہ قدم میرے کیبن کے بالکل پاس آ کر رک گئے ہیں۔ اب جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ میں نے اندر کرٹن کیے ہوئے تھے کہ باہر کا کچھ اندر نہیں اور اندر کا کچھ باہر نہیں دکھ سکتا تھا۔ میں بس چپ چاپ دم سادے سانس کھینچے آواز پہ کنسنٹریٹ کر رہا تھا کہ باہر جو بھی تھا نہ جانے کوئی حرکت نہیں کر رہا تھا، جیسے سکون سے کھڑا ہوا تھا۔ اس کی کوئی موومنٹ نہ بھی کرنا مجھے خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ میں بس اس کا اگلا ایکشن جاننا چاہتا تھا۔ یہاں ایک بات بتاتا چلوں، میں نے اندر سے کیبن کے دونوں ڈور لاک کیے ہوئے تھے۔ اب آپ یقین کریں کہ کوئی باہر ہے، وہ کوئی موومنٹ نہیں کر رہا اور ٹائم بھی گزرے جا رہا۔ اب ایسا بھی لگ رہا تھا کہ شاید جو تھا وہ چلا گیا ٹرک کی لائٹس آف دیکھ کر، کہ شاید اس ٹرک میں جو بھی تھا وہ نہیں ہے۔ مگر اگر ایسا تھا تو اس کے جاتے ہوئے اس کے پاؤں کی آواز مجھے آنی چاہیے تھی، مگر وہ بھی نہیں آ رہی تھی۔ دماغ بہت طرح کی چیزیں سوچ رہا تھا۔ اب تقریباً 15 سے 20 منٹ گزر جاتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں کہ ڈرائیونگ والے ڈور کا جو لاک ہے جیسے اسے کوئی پکڑ کے گھما رہا ہے، مگر وہ ڈور تو لاک تھا۔ میری ہارٹ بیٹ تیز ہونے لگی کہ میں بہت بری طرح ڈر جاتا ہوں۔ باہر اتنی ٹھنڈ میں اتنی دیر کوئی انسان اتنا پرسکون نہیں کھڑا ہو سکتا تھا۔ وہ مسلسل میرے ڈور کو لاک کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ میں سوائے بے بسی کے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ پہلی بار تھا میں اتنا ڈر گیا تھا۔ کچھ دیر زور آزمائی کے بعد وہ لاک کو چھوڑ دیتا ہے
अब फिर वही खौफनाक खामोशी और फिर उसके बाद मुझे वही बर्फ में चलने की आवाज़ सुनाई देती है। अब कोई ड्राइविंग साइड की साइड से हटकर दूसरी साइड की तरफ बढ़ रहा था। मैंने बस कदमों की आवाज़ से ही ये अंदाज़ा लगाया था, खैर वो अब इस तरफ आता है और इस तरफ के लॉक को खोलने की कोशिश करता है। अब मैं वैसे ही डरे सहमे बैठा हुआ था और ये देख रहा हूँ अंदर की साइड मुझे बकायदा लॉक में हरकत महसूस हो रही थी। मैंने दिल में सोचा कि कभी भी लॉक को तोड़ेगा और अंदर आ जाएगा। अब होता ही है कि वो थोड़ी जोर आजमाई के बाद लॉक को छोड़ देता है और फिर वही गहरी खामोशी। मेरे कान सिर्फ बाहर की आवाज़ को महसूस कर रहे थे। बाहर अब फिर से मुकम्मल खामोशी थी। अब वही खामोशी काफ़ी देर जारी रही। मैंने महसूस किया कि एक शख्स है या जो भी है वो खामोश मेरे केबिन के साथ खड़ा हुआ है। पहले उसने मेरे केबिन के साथ जोर आजमाई की, उसके बाद वो वहीं खड़ा था जो वहां से गया नहीं था। बात यहाँ खत्म नहीं हुई, अब कुछ और होना बाकी था। मुझे दो और लोगों के दूर से बर्फ में चलने की आवाज आ रही थी। याद रहे मैं बाहर देख नहीं सकता था, मैं बस आवाज से ही अंदाजा लगा रहा था। अब जब इन दो और लोगों की आवाज आती है तो मैं और ज्यादा डर जाता हूँ कि एक बला भी टली नहीं थी और ये दो और आ रहे हैं। वो चलते चलते मेरे केबिन के बहुत करीब पहुंच जाते हैं जहाँ पहले वाला शख्स खड़ा था। अब वो तीनों आपस में बात करते हैं, लेकिन हैरान कुन बात ये थी वो बातें भी विस्परिंग की तरह कर रहे थे और जिस लैंग्वेज में बात कर रहे थे वो लैंग्वेज मेरी समझ से बाहर थी। लेकिन इन सब में ये चीज नोट की कि एक आदमी था, एक लेडी थी और एक 12-13 साल का बच्चा था। फिर कभी दिल में यह आया कि डोर ओपन करके देखता हूँ शायद इंसान है, मगर बाहर हड्डियां जमा देने वाली ठंड में ये लोग कैसे खड़े हो सकते हैं। मैं अपनी जगह से उठता हूँ और कर्टन से बाहर झांकने की कोशिश करता हूँ कि देखूं कौन है, और मैंने इस स्टाइल से बाहर झांका कि अगर कोई बाहर खड़ा भी हो तो मुझे अंदर देख ना पाए। लेकिन मेरे देखने पर बाहर कोई नहीं था, मुझे कोई दिखाई नहीं देता। लेकिन हैरान कुन बात यह थी कि मैं अपनी तरफ से बहुत छुप कर देखता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं बाहर की तरफ देखता हूँ तो आवाज़ें भी बंद हो जाती हैं और बाहर कोई दिखाई नहीं देता। मैं ये तो नहीं बता सकता मेरी डर की कैफियत क्या थी, मगर बस ये बता सकता हूँ कि मैं मरने के बहुत करीब था। बाहर कोई नजर नहीं आ रहा था तो वो आवाज़ें कैसी थी। अब मैं वापस बिल्कुल खामोश होकर पीछे लेटा रहता हूँ और उसके बाद मैं अब उनके नेक्स्ट एक्शन का वेट कर रहा होता हूँ। मुझे यहाँ रुके हुए 1 घंटा हो चुका था। आराम तो मुझे क्या करना था, खौफ ने मुझ में एक अलग ही करंट पैदा कर दिया। मुझे अब महसूस हुआ कि वो ट्रक के सामने ही चलते हुए मेरे ट्रक से कुछ दूर जा रहे हैं। मैं अपने दिमाग में प्लान बनाता हूँ कि मैं ड्राइविंग सीट पे बैठता हूँ और ट्रक स्टार्ट करके एकदम से वहां से निकलता हूँ, क्योंकि जितना जल्दी हो सके मुझे ट्रक को यहाँ से निकालना है अगर किस्मत ने साथ दिया तो। और सब मुझे सडन करना था, वो कर्टन सामने से हटाना है, एकदम से ट्रक स्टार्ट करना है और एकदम से यहाँ से निकलना है, क्योंकि टाइम ओवर हो रहा था वरना मेरा ट्रक यहाँ बर्फ में धंस जाएगा और ऐसी जगह पर बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकता रुकने का। और अब मुझे चांस भी मिला है। वो जो भी थे ट्रक से दूर हो चुके थे। मैं ऐसा ही करता हूँ, ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठता हूँ और बिना कोई खटपट किए और बिना इधर उधर देखे कर्टन हटाता हूँ और ट्रक स्टार्ट करता हूँ और मैं वहां से निकलने की करता हूँ। मैंने जैसे ही ट्रक स्टार्ट किया, हेडलाइट ऑन की, मैंने दूर लाइट की रोशनी में कुछ लोग देखे, मगर मेरा ध्यान टोटली यहाँ से निकलने का था। लेकिन मैं बस उधर देख नहीं रहा था। मैं ट्रक स्टार्ट होते ही मैंने ट्रक को गियर में डाला और जैसे ही गाड़ी चलाने लगा तो बदकिस्मती से ट्रक जोर लेने लगा, मतलब अब चल नहीं रहा था। शायद मेरा ट्रक फंस चुका था। अब मैंने देखा कि वो लोग मेरी तरफ पलटे और आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए मेरे ट्रक की ओर बढ़ रहे हैं। मैं मुसलसल एक्सीलेटर दे रहा हूँ कि कैसे भी ट्रक यहाँ से निकल जाए, मगर ट्रक बहुत जोर ले रहा था। वो लोग मेरी तरफ बढ़ते जा रहे थे। अब वो लोग मेरी हेडलाइट की रेंज में आ चुके थे। मैंने गौर किया तो वाकई वो एक बच्चा था, एक लेडी थी और एक बंदा था। उनके हुलिये ऐसे थे जैसे वो लाश हो, जैसे बर्फ में पड़ी हुई लाशें गल सड़ जाती। वो गली सड़ी लाशें, नाक मुंह चेहरे पर खून ही खून जमा हुआ था। बस वो बहुत करीब आ चुके थे कि अचानक मेरा ट्रक भी जहाँ फंसा हुआ था वहां से निकल जाता है और मैं उनके सामने से ट्रक निकाल के चलने लगता हूँ और मेरा उनसे आई कांटेक्ट होता है। वो जो बच्चा था वो बड़ी मासूमियत से मुझे बाय बाय कर रहा होता है। मैं उस जगह से निकल जाता हूँ और वो मुझे बस जाता देख रहे थे, उनका कोई रिएक्शन नहीं था। काफी आगे बढ़ जाता हूँ और साइड मिरर से उन्हें देखता रहता हूँ। वो तीनों पीछे से मुझे जाता हुआ देख रहे थे और मैं वहां से निकल जाता हूँ। मगर अब बात यहाँ खत्म नहीं हुई, अब बहुत कुछ होना बाकी था। मुसीबत अभी टली नहीं थी बल्कि और बढ़ गई थी, क्योंकि बर्फबारी की वजह से विजिबिलिटी बहुत कम थी और सामने कुछ इतना दिखाई नहीं दे रहा था कि इतने में आगे ब्लैक आइस के बाइस ट्रक स्केट कर जाता है और रोड से थोड़ा नीचे साइड पर फंस जाता है। अब मैं उसे बहुत निकालने की कोशिश करता हूँ मगर वो बिल्कुल भी नहीं अपनी जगह से हिल रहा था। अब यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी ट्रक के अंदर एक वॉकी टॉकी होती है। मैंने उससे अपनी बेस पर कॉल की और उन्हें बताया कि मेरा ट्रक ऐसे स्टक हो गया है और मैं यहाँ फंस गया, तो मैं वहाँ कॉल करता हूँ। अब वो जो बेस पे बैठे थे उनके सिस्टम में मेरी लोकेशन आ रही होती है, तो वो वहाँ मैप पे देखते हैं कि कोई मेरी लोकेशन के करीब कोई वर्कशॉप है, तो वो उससे रब्ता करने की कोशिश करते हैं और मुझे भी कहते हैं कि आप जहाँ हैं वहाँ से ईस्ट की जानी 5 किलोमीटर पे एक वर्कशॉप है, अगर आप वहाँ जाके उनसे हेल्प ले लें, क्योंकि हमारा उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा। हम भी रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। वेल मैं उन्हें कहता हूँ कि यहाँ कुछ नजर नहीं आ रहा और ठंड हड्डियाँ जमा देने वाली है।
आप कैसे भी करके उनसे रब्ता करें। मैं उसे पूरी बात नहीं बता सकता था कि यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। वेल, अब ये बात हुई और मैं सोचने लगा कि अगर मैंने खुद ना कुछ किया तो ये जो स्नोफॉल हो रही है कुछ घंटों में ही मेरा ट्रक इतना धंस जाएगा कि फिर शायद कोई हेल्प के लिए आ भी जाए तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा। मैं अपने आप को पैक करता हूँ, जैकेट पहनता हूँ और एक हैवी ड्यूटी टॉर्च और वॉकी टॉकी लेकर नीचे उतरता हूँ कि जाके खुद ढूंढता हूँ वो वर्कशॉप। अब मसला ये था कि मुझे वापस उसी रास्ते पर जाना था जिस रास्ते से मैं आया था और मैंने वहाँ वो फैमिली देखी थी, मियाँ बीवी और उनका बेटा। खैर, मैं अब चलता रहा और जब मैं उस लोकेशन पर पहुँचता हूँ तो वही पाँव के निशान उन तीनों के जो उस रास्ते की तरफ जा रहे थे। ये मेरे लिए और डरा देने वाली बात थी और कहीं ना कहीं तजस्सुस भी था कि वो कौन थे। अब जहाँ मुझे जाना था वहीं वो पैरों के निशान जा रहे थे। उस टॉर्च की लाइट में मैं उन पैरों के निशान को फॉलो करता रहा और चलता रहा। बर्फ में चलना कितना दुश्वार होता है ये शायद आप भी जानते हैं। तकरीबन आधा घंटा लग गया था चलते चलते और इसी दौरान मैं वॉकी टॉकी पे अपने बेस से भी कोऑर्डिनेशन में था कि क्या मैं सही डायरेक्शन में चल रहा हूँ। वो भी मुझे गाइड कर रहे थे कि बिल्कुल आप ठीक जा रहे हैं। तो मैं देखता हूँ कि उसी जंगल के बीचों बीच एक घर है और वो पैरों के निशान भी उस घर के अंदर जा रहे थे। मैं पहले तो ओपनली उन पैरों के निशान को फॉलो कर रहा था, मगर जब मैंने उस घर को देखा तो मैंने अपने आप को छुपाना शुरू कर दिया। वो घर बहुत पुराना था, बहुत विंटेज घर था और छुप छुप के मैंने कोशिश ये की कि उस घर की विंडो से अंदर झांक कर देखूं कि ये लोग कौन है और यहाँ क्यों रहते हैं। खैर, मैं विंडो की जाने पड़ता हूँ, मुझे अंदर कोई नजर नहीं आता। अब बात ये थी कि रूम में अंगीठी में आग जल रही थी जैसे अभी कोई इस रूम में था, मगर मैं दूसरे रूम की विंडो से भी झांकता हूँ, मुझे वहाँ कोई नजर नहीं आता। मैं चुपचाप उस घर के मेन डोर पे आता हूँ और फिर आहिस्ता आहिस्ता डोर ओपन करता हूँ। वो डोर ओपन हो जाता है। मैं वैसे ही अपने आप को छुपाए अंदर एंटर होता हूँ और आहिस्ता आहिस्ता हर रूम को एक्सप्लोर करता हूँ, मगर पूरे रूम में कोई नहीं होता। इतने में मैंने यहाँ एक गलती कर दी थी। वैसे तो मैं अपनी तरफ से जेम्स बॉन्ड की तरह चुपचाप चल रहा था, मगर मेरे पास लगी वॉकी टॉकी का वॉल्यूम फुल था और फिर उस पे एक कॉल आती है। कॉलिंग संदीप, आप ये लोकेशन पर क्यों रुके? आप खैरियत से हैं? आप ठीक हैं? ये होने की देर थी कि बाहर एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आने लगी। मैंने महसूस किया कोई इस घर की तरफ आ रहा है। मैंने फौरन से अपने आप को उस रूम के अंदर बने एक स्टोर के अंदर छुपा लिया और सांस खींच कर बैठ गया। मैंने उस स्टोर से एक बारी जगह तलाश की जहां से मैं रूम के अंदर देख सकता था। फिर कुछ देर बाद मैंने देखा कि वही फैमिली उस रूम में दाखिल हुई है और वो लोग अजीब तरह से स्मेल ले रहे हैं और अजीब सी वैसी लैंग्वेज में विस्पर कर रहे हैं। लेकिन हैरान कुन बात यह थी कि ना वो पलकें झपका रहे थे और अजीब फटी आंखों से इधर उधर बस सूंघ रहे थे, जैसे कमरे में उन्हें मेरी मौजूदगी का एहसास हो गया था। उनमें से जो बच्चा था वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे स्टोर रूम के पास आता और अब वो लोग भी स्मेल लेते लेते स्टोर के सामने आ गए। मेरा दिल बंद हो गया ये मंजर देख के कि शायद अब उन्हें अंदाजा हो गया था कि कोई इंसान है जो यहाँ छुपा हुआ है। मैंने जल्दी जल्दी इधर उधर देखा। मुझे उस स्टोर में भी एक रोशनदान नजर आया और उसमें दिक्कत यह थी कि वहाँ एक शीशा लगा हुआ था। मैंने एक भारी सी चीज अंधेरे में उठाई, बस ये नहीं पता था क्या है मेरे हाथ में, और उस रोशनदान पे दे मारा और जल्दी से वहां से बाहर की जानिब कूद गया और बाहर बड़ी बर्फ पर जा गिरा। अब मुझे इतने में ऐसा महसूस हुआ कि कुत्ता जो शायद अब घर के मेन डोर से मेरी जानिब आ रहा था और वो बहुत एग्रेसिव था, उसके भौंकने की आवाज मुझे आ रही थी, वो मुझे पीछे आता महसूस हुआ। मैंने जल्दी से वहां से भागना शुरू किया और वहां से ऊपर पहाड़ की जानिब चढ़ना शुरू किया। हाइट थी मगर मेरी जान पे बनी हुई थी। मैं कैसे भी बच निकला। तकरीबन कोई 15-20 मिनट और चलने के बाद मुझे एक रोड नजर आया, जैसे वहाँ के मकामी लोगों ने अपने यूज के लिए एक छोटा सा रोड बनाया हुआ था। अब मैंने अपने कंट्रोल रूम से पूछा, उन्होंने कहा कि यहाँ करीब ही कुछ घर और वर्कशॉप और टायर शॉप और मोटल है, वहाँ जाना। मैं वहाँ पूछा, उन्हें अपने ट्रक के बारे में बताया। अब मैं बेसिकली एक ऐसी जगह था जहाँ अगर मैं अपने ट्रक से आगे जाता तो मुझे इस जगह से होकर जाना पड़ता, लेकिन मैं जो अंदर वाले रास्ते से आया था तो एक शॉर्टकट था, वरना जब मैं उनके साथ उनकी गाड़ी में गया तो मुझे अपने ट्रक तक पहुंचने में तकरीबन 30 से 35 मिनट लग गए। खैर, उन्होंने मेरी हालत देखी, पहले तो मुझे कॉफी ऑफर की। अब सर्दी के बाइस ना का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और फिर मुझसे पूछने लगे कि इतने घबराए हुए क्यों। वो बेसिकली एक फैमिली थी जो कि बाप बेटा और उनकी बेटियां सब वर्कशॉप का काम करते थे। वेल, मैंने उन्हें पूरी बात बताई तो उन्होंने बताया, आप जिस जगह गए थे वो एक हॉन्टेड हाउस है, वहाँ कोई नहीं जाता, इवन हम भी नहीं। वो एक फैमिली का घर है, उनके साथ 1915 यानी 1915 में एक हादसा पेश आया था। जंगल के डाकू डकैती की गर्ज से उनके घर में घुसे और फिर उस फैमिली का मर्डर कर दिया। वो फैमिली आज भी हाईवे पे लोगों को नजर आती है और उनमें एक बच्चा है और मियाँ बीवी, लेकिन वो किसी को कहते कुछ नहीं है, लेकिन लोगों से हेल्प मांगते हैं। खैर, वो किस्सा मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, उन्होंने मुझे बहुत तफसील से बताया था। अब मैं उनके साथ अपने ट्रक पे पहुंचा और वहाँ उन्होंने कैसे भी करके मेरे ट्रक को सीधा करके मुझे दे दिया। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और फिर मैंने उस फैमिली की पिक्चर ली। उस टाइम मेरे पास एक कैमरा हुआ करता था जिसमें पिक्चर क्लिक करते ही कार्ड में पिक्चर बाहर आ जाती थी। मैंने जब वो पिक्चर ली तो उसे देखने के बाद मेरी हैरानगी की हद नहीं थी। जब मैं बाय कर रहा था ट्रक में बैठे, मैंने उनकी ये पिक्चर ली थी और चलते चलते मैंने वो पिक्चर देखी। उस
फैमिली के पीछे वही तीनों थे, वही पुरस्कार फैमिली जो मुझे इस हाईवे पे नजर आई थी। बहरहाल ये थी मेरी स्टोरी, और अगर इस स्टोरी पर आपकी ऑडियंस ने अच्छा रिस्पांस दिया तो मैं आपसे वो स्टोरी भी शेयर करूंगा जो मैं 48 आवर्स के लिए एक जंगल में फंस गया था, और फिर मुझे 48 आवर्स के बाद उस जंगल से रेस्क्यू किया गया था। वो भी बहुत खौफनाक स्टोरी है, वो भी मैं आपसे लाजमी शेयर करूंगा। और अगर आपकी ऑडियंस को ये स्टोरी अच्छी लगी तो बहुत शुक्रिया संदीप, आपने अपनी स्टोरी शेयर की। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट करें, इनको बताएं कि आपको इनकी स्टोरी कैसी लगी, ताकि अपनी नेक्स्ट स्टोरी हमसे शेयर करें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वो लाइक का